Dear student, class 11th, subject chemistry, chapter first, some basic concept of chemistry. Dear student, we have learnt this chapter at previous video. At previous video, we have detected or read that lesson and try to learnt or understood the terminology of this lesson. At this video, we are going to explain, elaborate all the terms which are coined in this chapter for our further or advanced studies. Dear student, जैसा आप जानते हैं यह यूनिवर्स स्टार गैलेक्सीज प्लैनेट सैटेलाइट माउंटेन रिवर्स लिविंग एंड नॉन लिविंग से भरा पड़ा है। हम नेचुरल साइंस के अंतर्गत हमारे इस यूनिवर्स में होने वाले चेंजेस, उन पर पाई जाने वाली मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो अभी हमारे पास है कि हम नेचुरल साइंस के अंतर्गत ब्रह्मांड की विभिन्न मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं, तब हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हम केमिस्ट्री के थ्रू, बायोलॉजी के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू या अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस के थ्रू इस यूनिवर्स, इस बायोस्फीयर या इस कॉस्मेटिक सिस्टम में या इस सोलर सिस्टम में हो रहे चेंजेस या मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा अभी का टारगेट ये है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। What is the definition of chemistry and what is the concept of chemistry? Definition: you know that whole the universe is made up of atom, molecules, compound, mixture and different type of chemicals. The branch of natural science deal with these chemicals, atom, molecules, compound, their physical, their chemical behavior, their importance is known as a chemistry. It is the definition of chemistry. But what is the concept of chemistry? According to chemistry, dear student, जब आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं तब आपका एक नज़रिया या एक कॉन्सेप्ट होता है इस यूनिवर्स या इस ब्रह्मांड के एस्पेक्ट में। According to chemist, when you are the student of chemistry, your concept of the universe is that, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? कॉन्सेप्ट is that whole the universe is made up of two things. First, energy, second, matter. Means यह सारा ब्रह्मांड, अर्थ, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, हेवलीज बॉडी, एस्टेरॉयड, मेट्रॉइड्स, वी, mountain, rivers, all are made up of only two things, matter and energy. It is the concept of chemistry. हम इस पूरे ब्रह्मांड को केवल एक नज़रिए से देखते हैं। वह नज़रिया या कॉन्सेप्ट यह होता है कि अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री पूरा ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। यदि आप बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं तब आप बायोलॉजिस्ट की तरह का नज़रिया रखते हैं। मीन्स आपका कॉन्सेप्ट बायोलॉजिस्ट का होता है और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट होल द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉट matter and energy, not interaction of matter and energy, not the result of interaction of matter or energy is the atom according to biologist. Means ये हुआ, जब आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं तब होल द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, फर्स्ट एनर्जी, सेकंड मैटर. Matter and energy to interact to each other, arrange to each other and form a unit of particle that is known as the atom, that is known as the molecules, mixture, compound, etc. Means first हमने ये सीखा what is the concept of chemistry. Chemistry, the branch of natural science which deal with the atom, molecules, compound, mixture, different type of chemicals, their physical and chemical behaviors, their importance. It is the definition of chemistry. But whole the universe is made up of only two things. First is the matter, second is the energy.
Matter and energy interact to each other and form atoms, molecules, compound and mixture. So dear student, हमने ये जाना कि जब हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे होते हैं तब हम यह कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं अपने ब्रेन में कि यह पूरा ब्रह्मांड केवल मैटर और एनर्जी से मिलकर बना है। मैटर और एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और एटम मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डेवलप होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, properties of constituent particle, atom, molecules, its structure, effect of energy on it, it is called to the chemistry. Second, dear student, जब हमने केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझा तब हमारे पास दो वर्ड कॉइन हुए, फर्स्ट मैटर, सेकंड एनर्जी। तो कैसे डिटेक्ट करें व्हाट इज़ मैटर, कैसे आइडेंटिफाई हो दैट इज़ एनर्जी। मैटर इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड वेल, आपने पिछली कक्षाओं में इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैटर हैव अ मास, जिसके पास मास हो, हैव अ वेट, जिसके पास वेट हो, और ऑक्यूपाई बाय द स्पेस, या वह स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। और या तो मैटर वो है जिसमें मास है, योर चेयर इज़ मैटर बिकॉज इट हैव मास, या वेट हो, या उसमें वॉल्यूम हो, और ऑक्यूपाई द स्पेस, या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। सपोज देन आप इन तीन मेथड से या इन तीन कैरेक्टर से पर्टिकुलर मैटर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन वन की सेंटेंस इज आल्सो हियर, एक कीवर्ड और है, मैटर इज डिटेक्टेड बाय योर सेंस ऑर्गन्स। मीन्स हाउ मनी सेंस ऑर्गन्स यू हैव, मीन्स मैटर को आप अपने सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हो। स्मेल, टच, sound, the restriction of light, these are the our sense organs detected that particular and detect that is a matter. Means sound is a matter because it is heard by you. Air is a matter because your skin is detect the air, it is rushes फ्रॉम योर स्किन। मीन्स हवा भी एक मैटर है, क्यों? क्योंकि वो आपके स्किन को टच करती है और रैसेस आप महसूस करते हैं। मीन्स जिसे 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू डिटेक्ट किया सके वो मैटर। नेक्स्ट वन, एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी एक प्रीवियस और यूनिवर्सल डेफिनेशन जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ द एनर्जी। एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ द यूनिवर्सल डेफिनेशन। ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मॉडिफाई किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट, हमारा पहला टारगेट या पहले स्टेंजे का टारगेट था यह समझना कि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। कॉन्सेप्ट एक नज़रिया है जिसके थ्रू हम उन की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हैं। जब आप केमिस्ट्रियन होते हैं तब आपका कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के थ्रू केमिस्ट्री की तरह होता है और आप इस ब्रह्मांड को मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन का रिजल्ट मानते हैं, जो कि एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल मिक्सचर और कंपाउंड के फॉर्म में होता है। सेकंड वन, वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं समझने कि इस केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, अब फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है। आप जानते हैं पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हम केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से संबंधित स्टडीज़ की स्टडी करते हुए चले आ रहे हैं। आज हमारी लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए एसेसरीज़ केमिस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले हम हेल्थ प्रोटेक्शन पर पहुँचे तो डिफरेंट टाइप के सैनिटाइज़र, डिफरेंट टाइप की डिसीज़ प्रिवेंटिंग ड्रग्स, टैबलेट्स, सिरप्स, सब केमिस्ट्री की फार्मूलेज, केमिस्ट्रीज की थ्योरी और उनकी एनालिसिस और उनके क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। मीन्स हमारा हेल्थ सेक्टर केमिस्ट्री की थ्योरीज़ पर स्टैंड है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी पर यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप के सैनिटाइज़र, केमिकल्स, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स, ड्रग्स, एनर्जी बूस्टर,
सभी केमिस्ट्री की थ्योरी पर प्रिपेयर किए जाते हैं। सेकंड वन, एंटीबायोटिक्स एंड ट्रांसक्विलाइजर, क्लास, वेल्डिंग, मेटल्स, एलॉयज, प्लास्टिक, ग्लास, फ्यूल्स, कॉस्मेटिक्स, पेंट, वार्निश, स्पेस प्रोग्राम, हर जगह पर केमिस्ट्री का यूज है। इसलिए हम कह सकते हैं केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और फ्यूचर में इसका स्कोप भी अच्छा है। मीन्स द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री क्वाइट वास्ट। We have different type of fields just like agriculture, industrial, soil, medicine, space, environmental, nuclear, forensic, poison, food, green chemistry, energy chemistry. So different type of different branches of chemistry which deal with the different theories, their importance chemical and utilization in particular fields। मीन्स अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री का स्कोप वास्ट है। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, सॉयल हो, मेडिसिन सेक्टर हो, स्पेस प्रोग्राम्स हो, एनवायरमेंटल हो, न्यूक्लियर सेक्टर हो, फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक सेक्टर हो, फूड इंडस्ट्रीज हो, बेवरेज इंडस्ट्रीज हो, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री का एक अपना रोल है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो कि केमिस्ट्री की थ्योरीज पर स्टैंड हैं, जिनका आइडेंटिफिकेशन, जिनका ऑब्जर्वेशन, जिनका की मेरिट है और डीमेरिट, यूज़ और इम्पोर्टेंस सब केमिस्ट्री के द्वारा ही जाना जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक ये जाना व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, थर्ड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू study the historical approach to particular nature of matter। डियर स्टूडेंट, हमारी केमिस्ट्री मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन का रिजल्ट है, इसलिए हम हिस्ट्री पर यह ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब से इतिहास में हम हिस्ट्री में कब से इस कण, इस पार्टिकल या इस मैटर के बारे में क्यूरियस हुए या जानने की कोशिश करना शुरू किए या इस पर स्टडी होना शुरू हुई। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मैटर पार्टिकल है या वेव है। तो सबसे पहले मैटर को पार्टिकल माना गया। पार्टिकल मीन्स हैव अ मास, हैव अ वेट, ऑक्यूपाई द स्पेस, सो इट इज़ अ पार्टिकल। मीन्स मैटर पार्टिकुलेट नेचर शो करता है, मीन्स पार्टिकल बिहेवियर को शो करता है। ये सबसे पहले यह स्टडी 200 BC में की गई, वैशेषिक फिलॉसफी के थ्रू की गई। कणाद नाम के ऋषि या महर्षि ने एक्सप्लेन किया एटम के स्ट्रक्चर को और बताया कि मैटर का वह सबसे छोटा पार्ट जो अपने कैरेक्टर्स की इंटरनिटी या अपीयरेंस को शो करता है, एटम कहलाता है। मीन्स हमारे यदि हम हिस्ट्री को खंगालें तो हमें पता चलता है कि मैटर की कंस्टिट्यूएंट यूनिट एटम होती है। इसे सबसे पहले कणाद नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। इसके बाद तर्का समग्र दीपिका में लिखा गया। इस तरह से स्मॉलेस्ट पार्टिकल की रिपोर्टिंग लगातार चलती गई, लेकिन हमें इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन कणाद के बाद एंशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलता है 15th सेंचुरी में। तब ये माना गया जब तक कि कब 15th सेंचुरी में जब ये माना जाता था कि यह यूनिवर्स जो आज मान रहे हैं कि मैटर से मिलकर बना है, माना गया कि ये 5 एलिमेंट अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्काई से मिलकर बना है। लेकिन जब रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में आए, कार्पस्कुलर की थ्योरी 19th सेंचुरी में आई, रशियन केमिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि यह इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसे हमने जॉन डाल्टन कहा, उन्होंने इसे इंडिविजिबल पार्टिकल को एटम नाम दिया। तो यदि हम हिस्ट्री खंगालें तो दो नाम हमारे सामने मेजॉरिटी में आते हैं। फर्स्ट आता है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने मैटर की सबसे छोटी इकाई या यूनिट को कण नाम दिया और उसी को ही आगे जा कर के जॉन डाल्टन ने एटम नाम दिया जो कि पार्टिकुलेट नेचर को शो करता है।
सो डियर स्टूडेंट, हमने हिस्ट्री पर नज़र डाली तो पता चला कि विभिन्न टाइम और टाइम पर एज बाय एज अलग अलग स्कॉलर्स और फिलासफर के द्वारा अटेम्प्ट लिए गए कि कण या मैटर की पर्टिकुलेट नेचर को जस्टिफाई किया जा सके। और पहला अटेम्प्ट महर्षि कर्णाद ने लिया, जिन्होंने इसे कण कहा। धीरे धीरे स्टडी फर्दर एडवांस होती गई और जॉन डाल्टन ने इसी कण को एटम नाम दिया और एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी। सो डियर स्टूडेंट, इस कण की या इस मैटर की पर्टिकुलेट नेचर जानने से पहले हम कुछ टर्म्स कॉइन करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ मिक्सचर, व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, व्हाट डू मीन्स बाय होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, व्हाट डू मीन्स बाय एलिमेंट्स, व्हाट डू मीन्स बाय कंपाउंड। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट डू मीन्स बाय प्योर सब्सटेंस। मीन्स आप भी जानते हैं ईच सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन। सपोज देन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर? H2O मीन्स 2:1, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is 2:1. What is the composition of carbon dioxide? Carbon and oxygen react or compose with 1:2 and form the carbon dioxide. तो अपन कह सकते हैं ऐसे मटेरियल या ऐसा मैटर जो अपने निश्चित कंपोजिशन या फिक्स कंपोजिशन में पाया जाता है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मिक्सचर, व्हाट इज़ द कंपाउंड। व्हेन बी मिक्स two material in a definite amount and found a definite product that is known as the compound. यदि हम दो या दो से अधिक मैटर्स को मिलाते हैं, डेफिनेट अमाउंट में रेशियो में मिलाते हैं, तो हमें डेफिनेट रेशियो वाला कंपाउंड मिलता है। लेकिन जब हम दो या दो से अधिक मटेरियल को इनडेफिनेट कंपोजिशन में मिलाते हैं और तब हमें इनडेफिनेट कंपोजिशन का ग्रुप मिलता है, जैसे एयर, सॉल्यूशन एक्सेट्रा, इसे हम मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म, व्हाट डू मीन्स बाय होमोजीनस और होमोजीनसिटी। सेकंड, हेट्रोजीनस या हेट्रोजीनोसिटी। होमोजीनस और होमोजीनोसिटी। होमोजीनस मीन्स similar to each other, means different material which are similar on the basis of shape, size, stage, color, that are homogeneous. If they are not same as the shape, size, color, appearance, weight, that are heterogeneous, means we can say that दो या दो से अधिक सब्सटेंस जिन्हें कम्प्लीटली मिक्स किया जाए और इस तरह से मिक्स किया जाए कि उन दोनों वो यूनिफॉर्मिटी शो करें, मीन्स उन दो अलग अलग मटेरियल जिनको आपस में मिक्स किया गया है वो यूनिफॉर्म हो चुके हैं, दोनों का शेप, साइज, अपीयरेंस, कलर, स्टेजेस में कोई डिफरेंस नहीं, तब ऐसे मिक्सर को हम होमोजीनस मिक्सर कह सकते हैं। बट यदि हम दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद यदि उनमें कलर, शेप, साइज़, स्टेजेस, इन किसी में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और वो दोनों यूनिफॉर्मिटी शो नहीं करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि यह हेट्रोजीनस मिक्सचर है। सो डियर स्टूडेंट, होमोजीनस मिक्सचर इज़ द प्योर मटेरियल और प्योर सॉल्यूशन, बट हेट्रोजीनस इज़ कंसिडर्ड टू इम्प्योर और मिक्स सॉल्यूशन और मिक्स मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। डियर स्टूडेंट, आप पहले से जानते हैं हर मटेरियल का एक निश्चित कलर, ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और उसकी डेंसिटी होती है। इसके बेस पर वो डिफरेंट टाइप के फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। हाउ टू डिफाइन द मैटर? मैटर इज दैट हैव द वॉल्यूम। मैटर which is have a mass, length, etc. quantitative property of the matter. There are two part of quantitative observation. मीन्स डियर स्टूडेंट, मैटर वो है जिसमें मॉस होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रियलाइज़ किया जा सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू जाना कि मैटर वो है एयर इज़ अ मैटर। हाउ कैन बी से दैट एयर इज़ अ मैटर? हम कैसे कह सकते हैं कि एयर मैटर है? क्यों? क्योंकि हमारे स्किन के द्वारा इस स्किन को यह एयर रस करती है, मीन्स हम इसे टच करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये मैटर है। मीन्स हमारे 5 सेंस ऑर्गन यदि इसे डिटेक्ट कर लें तो वो मैटर है, यदि उसमें मॉस है तो वो मैटर है, उसमें वेट है तो वो मैटर है।
आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जानी। हमने जाना डिफरेंट केमिकल एटम, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर, कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका इम्पोर्टेंस। जिस ब्रांच में स्टडी की जाए वो केमिस्ट्री है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री? हमने ये नज़रिया लिया। क्या नज़रिया लिया? कि यह यूनिवर्स, होल द यूनिवर्स, स्टार्स, सैटेलाइट, planet or other heavenly's body, river, mountain, earth, plant, animals, all are composed of only two parts। यदि केमिस्ट्री में बात की जाए तो ये सभी चीज़ें या ये पूरा यूनिवर्स केवल दो ही चीज़ों से मिलकर बना है। वो है फर्स्ट मैटर, सेकंड है एनर्जी। मैटर वो जिसमें मॉस, स्पेस हो, जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा डिटेक्ट किया जा सके। एनर्जी वो जिसमें वर्किंग कैपेसिटी हो, या एनर्जी वो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसके बाद हमने ये जाना इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारे डेली लाइफ से लेकर के हमारे इंडस्ट्रीज़ तक, हमारे घर से लेकर स्पेस तक, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर ओशियन तक, या हमारे पॉइजन से लेकर के एंटीबायोटिक इंडस्ट्रीज़ तक, हमारे डिटर्जेंट से लेकर हमारे फ्यूल सेक्टर तक, हर जगह केमिस्ट्री की थ्योरी और केमिस्ट्री के थ्योरी और रूल्स के द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्ट यूज होते हैं, जिससे केमिस्ट्री का सेक्टर वास्ट है। सो डियर स्टूडेंट, फिर इसके बाद हमने ये जाना कि मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल टू टाइप का होता है, या तो प्योर सब्सटेंस या तो मिक्सर। प्योर वो जिनका कंपोजिशन फिक्स हो, मिक्सर वो जिनके रेशियो मिक्स होने पर डिपेंड करें। आफ्टर दैट मिक्सचर और कंपाउंड हमने पाया। मिक्सचर और कंपाउंड टू टाइप्स के हुए। फर्स्ट होमोजीनस, दे शो द they show the uniformity on the basis of their shape, size, color, smell, order, stage, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यदि हम दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स करें, मिक्स करने पर हमें न्यू प्रोडक्ट मिले, और उस प्रोडक्ट में मिक्स किए गए दोनों मटेरियल अपनी आइडेंटिटी खो दें, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, स्टेज में उन दोनों पर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले, तब वह मिक्सचर होमोजीनस। यदि नहीं, दैट इज़ द हेट्रोजीनस। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में हम या डिफरेंट केमिकल्स में हम अलग अलग रेशियो पर अलग अलग रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं। अलग अलग या वेरियस रेशियो में मिक्स हुए डिफरेंट रिएक्टेंट केमिकल चेंज को परफॉर्म करते हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स डिफरेंट रिएक्टेंट परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन on the mixing of that reactant, they produce a product. These process or phenomena is a called a chemical reaction. Means dear student, हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट लेते हैं, उन दोनों को एक डेफिनेट और फिक्स सिस्टम में मिक्स करते हैं। दोनों को मिक्स करने पर केमिकल चेंज परफॉर्म होता है और हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है। यह फिनोमिना या यह प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस के रूप में जानी जाती है। डिफरेंट लॉज, डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट केमिकल बिहेवियर या केमिकल कम्बिनेशन को गवर्न करती हैं। उन गवर्न करने वाले लॉज की स्टडी हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। डियर स्टूडेंट, एक क्यूरियोसिटी हमारे सामने आती है। यदि सपोज देन हम एक मैच स्टिक लें, एक पेपर लें, मैच स्टिक को स्विच ऑन करें और पेपर को बर्न कर दें, तब हम क्या देखते हैं? बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, मीन्स पेपर को जलाने से पहले और पेपर को जलाने के बाद दोनों परिस्थितियों में दोनों का कंपोजिशन, दोनों का मॉस, दोनों का वेट बहुत ही चेंज होता है। तब हमारे ब्रेन पर एक कंक्लूजन आता है, क्या केमिकल रिएक्शंस के बाद या किसी केमिकल रिएक्शंस के परफॉर्म होने के बाद मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है या कंजर्व रहता है। तब हमारा रूल नंबर फर्स्ट आता है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के परफॉर्म होने के बाद या काम परफॉर्म होने से पहले इस यूनिवर्स में जो मैटर का कंपोजिशन है या अमाउंट है वो सदैव कंजर्व रहता है। इस
लॉ को लॉन्च की प्रपोज किया लेमोनोसॉफ ने। बाद में इसे कंफर्म किया लेवोजियर ने। उनके अनुसार मैटर को ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिजिकल और केमिकल चेंज के द्वारा इसे वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि हम इसकी लेबोरेटरी जस्टिफिकेशन चाहते हैं तब हम क्या लेते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं। उस फ्लास्क में हम थोड़ी सी सैंड लेते हैं और उसमें फास्फोरस का पीस रख देते हैं। उस फ्लास्क के माउथ को टाइटली पैक कर देते हैं। जब वो टाइटली पैक हो जाता है तो उस फ्लास्क में भरी हुई रेत और रेत में प्लेस किया गया फास्फोरस सभी को वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हम उस वेट को नोट करते हैं। थोड़ी देर बाद हम उसे हीटेड करते हैं। उस फ्लास्क को हीट करने पर फास्फोरस बर्न होता है और सॉलिड से गैसेस स्टेज में पहुंच जाता है। रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद हम फिर से उस फ्लास्क का वेट करते हैं। रिएक्शन के पहले और रिएक्शंस के बाद फास्फोरस केमिकल चेंज परफॉर्म कर चुका होता है। मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मॉडिफाई हो चुका होता है, लेकिन उसके मॉड्स या वेट या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। इस तरह अपन कह सकते हैं कि रिएक्शंस के पहले या रिएक्शंस के बाद मीन्स कि किसी भी केमिकल चेंज के बाद मैटर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता। मीन्स मैटर का मास सदैव क्या कंजर्व रहता है। सेकंड रूल, लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स और डेफिनेट प्रोपोर्शन। डियर स्टूडेंट, हम अलग अलग रेशियो में डिफरेंट रिएजेंट को आपस में मिक्स करते हैं, तब हमें अलग अलग रेशियो में मिक्स करने के बावजूद एक हमें फिक्स रेशियो का प्रोडक्ट ही प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल से लिया जाए, CO2 इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड, CO इज़ अ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO3 इज़ द कार्बोनेट आयन। मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से 2 या 3 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शंस करता है, NO, N2O, N2O5, N2O3 एंड NO2 जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। मीन्स हम ये समझना यहाँ चाह रहे हैं कि हम अलग अलग बेस से डिफरेंट रिएजेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो जो उसमें एक निश्चित प्रोडक्ट बनता है, क्या वह प्रोडक्ट में उन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स होता है या वह बदलता हुआ रहता है। तब यह रूल्स कहता है, क्या कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहे किसी भी सोर्स से लिया जाए या किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया जाए, उसका केमिकल कंपोजिशन और उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का वेट सदैव बराबर होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर। इसका फार्मूला है H2O होता है। मीन्स 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन mix with 1 part of oxygen and form a hydride of oxygen that is known as the water, means H2O। वाटर चाहे किसी भी सोर्स से लिया जाए या किसी भी स्टेज में उसे ऑब्जर्व किया जाए, चाहे वो माउंटेन से हो, बेल, सी, रेनफॉल से हो या किसी रिएक्शंस के द्वारा प्रोड्यूस हुआ हो, या अपन कह दें उसे क्या कह दें किसी भी नेचुरल रिसोर्स से वो प्रोड्यूस हुआ हो, या सॉलिड लिक्विड गैस स्टेज में हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 यदि वेट के आधार पर देखा जाए तो अब वह 1:8 होता है। अपन कह सकते हैं कि वाटर H3O नहीं हो सकता, H4O2 नहीं हो सकता। मीन्स हम रिएक्शंस के पहले मटेरियल को किसी भी रेशियो मिक्स करें, जब हमें वो प्रोडक्ट जो हमें मिलता है उसका कंपोजिशन ऑलवेज क्या होता है, डेफिनेट होता है। Dear student, we have learnt the characteristic of gases in previous classes. Dear student, हमने प्रीवियस क्लासेस पर गैस को इफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर और गैसों के कैरेक्टरिस्टिक के स्टडी करिए। हमने ये जाना कि गैसों पर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तब एक समस्या ये आती है कि हम गैसों को किस तरह मेजर करके डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करें, या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होने पर या केमिकल चेंज परफॉर्म होने पर कितनी अमाउंट गैस इवॉल्व होती है, इसे कैसे मेजर करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
गै-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वैल्यूम गै-लुसाक द्वारा प्रपोज किया गया। लुकास के अकॉर्ड जब गैस आपस में कंबाइन होती हैं, चाहे वो सिंपल रेशियो में कंबाइन हो रही हों या किसी अदर रेशियो में कंबाइन हो रही हों, जिस वॉल्यूम पर उनको कंबाइन किया जाता है तब जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका रेशियो भी सिंपल होता है। मीन्स क्या हुआ, सपोज देन यदि हम किसी एक सिस्टम पर गैसों की रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमने एक निश्चित फ्लास्क लिया, उसमें निश्चित अमाउंट गैस फिलअप करी, हमने 2 फ्लास्क लेकर दोनों में एक फ़िक्स अमाउंट गैस एक निश्चित सिस्टम पर परफॉर्म दोनों को मिक्स करवाया। सपोज देन एक में हमने हाइड्रोजन गैस और दूसरे हमने ऑक्सीजन गैस फिलअप करी। तो अब ये कहता है कि जिस कंटेनर पर हमने दोनों गैस फिलअप करी हैं, यदि दोनों का सिस्टम मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम यदि तीनों को कांस्टेंट कर दिया जाए, तब जिस कंटेनर पर पहली गैस भरी जाएगी और जो उसका अमाउंट होगा, दूसरी गैस उसी कंटेनर पर भरने पर उसका अमाउंट पहली गैस के ही बराबर होगा। मीन्स गै-लुसाक गैसेस रिएक्शंस और उनके वॉल्यूम से रिलेटेड कन्फ्यूजन को सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए तैयार होते हैं तब हमारे पास समस्या ये होती है कि हम गैसेस को किस तरह मेजर करें, रिएक्शंस के बाद कितनी गैस इवॉल्व हुई है, इस इवॉल्व हुई गैस को किस तरह मेजर किया जाए, इसके अमाउंट या इसके वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जाए, ये एक प्रॉब्लम थी। तब गै-लुसाक के अकॉर्ड यदि हम कंटेनर जो कंटेनर हमने ले रखे हैं, यदि उन सभी कंटेनर्स पर अलग अलग गैस एक निश्चित सिस्टम पर फिलअप की जाए, मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इन तीनों को कांस्टेंट कर दिया जाए, तब उस कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर किसी भी कंटेनर पर कोई भी गैस भरी जाए उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिमिलर होगा। और इस तरह से हमने गैसियस रिएक्शंस संबंधित क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल, सपोज देन आपने हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल्स ली, आपने क्लोरीन गैस भी एक मॉलिक्यूल्स ली, दोनों को एक एक वॉल्यूम सिमिलर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में आपने लिया। उसी कंडीशन में आपने इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाया, तब आपको जो इसका प्रोडक्ट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा वो 2 मॉलिक्यूल्स होगा। या कह सकते हैं सपोज हमने 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, एक मॉलिक्यूल्स हमने ऑक्सीजन ली और इन दोनों का रिएक्शंस हमने करवा दिया, तब हमें 2 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। डियर स्टूडेंट, एवोगाड्रो लॉ भी इसी पर बेस्ड है। एवोगाड्रो लॉ मिस्टर एवोगाड्रो द्वारा प्रपोज किया गया। इन्होंने माना कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट या इक्वल कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी कंटेनर, सपोज देन एक कंटेनर हम लें, उस कंटेनर का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो, सपोज देन इट इज़ एक्सपेरिमेंट। चलो डियर स्टूडेंट, एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो, हम वहाँ का प्रेशर 1 atm कर दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर हम 0 मीन्स 273 केल्विन कर दें, मीन्स 1 डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री प्रेशर, और हम इस टेम्परेचर और प्रेशर पर हमने वॉल्यूम कितना लिया, 22.4 लीटर। यदि इस कंटेनर के इस टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई भी गैस इस कंटेनर पर फिलअप की जाती है, तब उस पर गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 निकलता है, जिसे हम 1 मोल के नाम पर जानते हैं। मीन्स ये हुआ, हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर का वॉल्यूम जो भी हो, सपोज है ना, हमने उसका वॉल्यूम 1 लीटर है जो कंटेनर लिया, यदि हम उस टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दें, मीन्स हमने 1 डिग्री टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर चाहे H2 फिलअप करिए, चाहे हीलियम फिलअप करिए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप करिए, या कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड या कोई भी गैस फिलअप करिए, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पर जो भी गैस किसी कंटेनर पर फिलअप की जाती है, तब उसका वॉल्यूम भी क्या होता है,
कांस्टेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन पर या डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बिहेवियर को गवर्न करने वाले रूल्स हमने पढ़े। हमने ये जाना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मींस मैटर कांस्टेंट रहता है, और उसे ही हमने कंजर्वेशन ऑफ मास जाना। जब हम दो या दो से अधिक मटेरियल को सिमिलर या वेरियस रेशियो में मिक्स करते हैं, तो चाहे हम किसी भी रास्ते से या किसी भी ढंग से या किसी भी रेशियो में हम मटेरियल को मिक्स करें, जो प्योर प्रोडक्ट होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट ही होते हैं। इसके बाद हमने ये जाना गैलुसाक का गैसेस लॉ कि यदि हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाता है, और यही आगे जाकर एवोगाड्रो लॉ के नाम पर जाना गया। Dear student, after the governing laws, we have studied the Dalton atomic theory and modern atomic theory. Dear student, हमने एटम्स के लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो इसकी जस्टिफाई थ्योरी है उसे हमने एडवांस में अभी पढ़ा। हमने हिस्टोरिकल व्यू पर ये जाना था कि ये जो कणीय प्रगति है, पर्टिकुलर नेचर है मैटर का, इसमें सबसे पहले कणाद ने ऑब्जर्वेशन दिया। इसके बाद जॉन डाल्टन ने इसके पर्टिकुलर नेचर के बारे में व्यूज़ दिए। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम पर जाना। उनके अकॉर्ड मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल, ना डिवाइड होने वाले पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मीन्स मीन्स कैन नॉट, टॉम मीन्स टू कट, दैट नॉट टॉम और टू कट, दैट इज़ नोन एज द एटम। मीन्स डाल्टन के अकॉर्ड किसी मैटर के को हम कट टू कट फर्दर कट करते हुए चले जाएं, और जब हम उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालें और उसे फर्दर और भी डिवाइड ना किया जा सके, वह एक्सट्रीमली स्मॉल जो मटेरियल या पार्टिकल निकलेगा, डाल्टन ने उसे एटम नाम दिया। डाल्टन का मानना था कि हर सब्सटेंस एक ही प्रकार या आइडेंटिकल पार्टिकल या एटम से मिलकर बना होता है। वह जो मटेरियल है उसके जो एटम हैं वो शेप, साइज़, मॉस और केमिकल और फिजिकल सभी प्रॉपर्टी में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, और आज जिसे हम एलिमेंट्स के नाम पर जानते हैं। डाल्टन के अकॉर्ड अलग अलग सब्सटेंस के एटम का साइज अलग अलग होता है, चाहे वो साइज़ में हो डिफ़र हो, शेप में डिफ़र हो, मॉस में डिफ़र हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ़र हो। डाल्टन के अकॉर्ड मटेरियल, मैटर, सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर, मॉलिक्यूल्स किसी भी फॉर्म में हो, बस उसे रिएक्शंस करने के लिए या रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए उसे अपने एटम में डिसोसिएट या इलेबोरेट होना पड़ेगा। मीन्स डाल्टन ने माना कि मैटर का सबसे एक्सट्रीमली स्मॉल ना डिवाइड होने वाला पार्ट एटम कहलाता है। एटम किसी भी मटेरियल के में जितने भी एटम होते हैं वो शेप, साइज, मॉस, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलर होते हैं। दो अलग अलग मटेरियल या मैटर के एटम शेप, साइज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में सिमिलर नहीं होते हैं। एटम ही केमिकल रिएक्शंस की यूनिट होता है, मीन्स एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ना कि एटम के कम्बिनेशन से बना हुआ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड या मिक्सचर। इनका मानना ये भी था कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, एटम को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मीन्स ये माना गया कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशकारी है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर डाल्टन। इनका मानना ये भी था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इसे और एक छोटे टुकड़ों में काटा नहीं जा सकता। यदि हम इसे कंक्लूड करें एटम को, तो हमें डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्ड हमें ये पता चलता है एटम ना डिवाइड होने वाला, केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म होने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। इन्होंने एक सेपरेशन और दिया कि प्योर मटेरियल सब्सटेंस, एक मटेरियल में जो भी एटम होते हैं उनका शेप सिमिलर शेप साइज होता है, मीन्स यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन दो मैटर या दो मटेरियल या दो सब्सटेंस के
एटम एक दूसरे से आइडेंटिकल इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन डाल्टन की ये एटॉमिक थ्योरी जस्टिफाई तो रही, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस रहे। क्या लिमिटेशंस रहे? इनका लिमिटेशन ये था कि ये थ्योरी यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि दो एलिमेंट्स या दो अलग अलग मैटर के एटम शेप, साइज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट क्यों होते हैं। मीन्स इन्होंने ये तो बताया कि हर मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। एक मटेरियल में पाए जाने वाले सभी एटम सिमिलर होते हैं, लेकिन दो अलग अलग मटेरियल में पाए जाने वाले दोनों एटम सिमिलर नहीं होते हैं। तो यह थ्योरी यह जस्टिफाई नहीं करती कि अलग अलग मटेरियल में पाए जाने वाले अलग अलग एटम डिफ़र क्यों होते हैं। सेकंड, यह थ्योरी यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, कंबाइन होकर वो कंपाउंड और मिक्सचर क्यों बनाते हैं। यह एक्सप्लेन करने में यह अनेबल है। यह थ्योरी बॉन्डिंग फोर्स एटम कंपाउंड या एटम मॉलिक्यूल्स में क्यों बदलता है, इसे एक्सप्लेन करने में असमर्थ है। इट इज़ अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल एटम एंड कंपाउंड एटम मॉलिक्यूल्स। मीन्स जब एटम फ्रीली केमिकल रिएक्टिंग यूनिट की तरह वर्क करता है और जब वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, तब उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसे एक्सप्लेन करने में असमर्थ